हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग आज डीसी मशीन में उसके कंस्ट्रक्शन पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। डीसी मशीन, all of you know that is a part of rotating electric machines. Okay, डीसी मशीन बेस्ड ऑन डीसी सोर्स हम लोगों ने रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स को दो पार्ट में क्रैक किया। ओके, जिसमें फर्स्ट वन हम लोग एसी मशीन बेस्ड ऑन द एसी सोर्सेज, डीसी मशीन बेस्ड ऑन द डीसी सोर्सेज। ओके, देन बेस्ड ऑन द डीसी सोर्स हम लोग डीसी मशीन के बात किए। नाउ फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, from the construction point of view, there is no any difference between the DC generator and DC motor. You know, every machine works with either generating property or motoring property, that is generating mode or motoring mode, depending upon their output. If the output of the machine is electrical energy, then those machines are called generator. If the output of those machines are mechanical energy, then those machines are called motor. Okay, then every machine acts with two modes, generating modes and motoring modes. And from the construction point of view, DC machine have no any differences regarding the DC generator and DC motor. Got it? Then हम लोग बात करें DC मशीन का, then DC machine, that is a type of rotating electric machine in which electromechanical energy conversion occur, in which electromechanical energy conversion takes place whether the given DC machine is DC generator or DC motor, that doesn't matter. Got it? Then any DC machine can be used as DC generator or DC motor from the point of view of construction. Got it? Now in the case of DC machine, energy conversion takes place when there is relative motion between the stator and rotor. Okay, now what is the stator and what is rotor? All of you know. A stator, that is the stationary member, and rotor, that is the rotating member. All of you know. Okay, then in the case of DC machine or in the case of any machine, there must be the relative motion between the stator and rotor. Okay, so the relative motion between the stator and rotor, that is the necessary conditions or sufficient condition for the electromechanical energy conversion. Got it? Now if we will talk about the essential parts of DC machine, हम लोग डीसी मशीन के एसेंशियल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे या बात करते हैं। देन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी डीसी मशीन हैव द पार्ट्स स्टेटर, रोटर, एयर गैप पेरिफेरी। Okay, air gap periphery, shaft, nut, bolts, ball bearing, etc. Okay, now what is a stator, what is rotor? A stator, that is the stationary member, rotor, that is the rotating member. Air gap periphery between the stator and rotor. Just see, this is the air gap periphery, this is ओके, दिस इज द एयर गैप पेरिफेरी, है ना। और इसके बाहर का जितना पार्ट आपको दिख रहा है, ओके, दैट इज द स्टेटर। इसके अंदर का जो पार्ट दिख रहा है, दैट इज द रोटर। ओके, एक्सेप्ट द ब्रशेस, दीज आर द ब्रशेस। देन हम लोग अगर एसेंशियल पार्ट्स में अगर हम लोग कैटेगराइज करें स्टेटर और रोटर को, देन वी विल सी द स्टेटर पार्ट and rotor part. Got it? A stator part, a stator का फर्स्ट पार्ट, दिस वन योक, द आउटर पेरिफेरी योक बात करेंगे हम लोग, डोंट वरी। ओके,
second part, this one, field pole. Okay, field pole, that is the second part. Now this one is the field winding. Okay, third one field winding. Okay, this one fourth interpole. Okay, this one 5 compensating winding. Okay, compensating winding. This is the parts, this is the essential parts of a stator. Now the essential parts of rotor. Okay, rotor, first of all, this is the armature core. This is the armature core. Okay, armature core. Okay, second one, this is the armature winding. ओके, हम लोग पूरा सब चीज़ का डिटेल करेंगे, डोंट वरी. ओके, दिस वन इज commutator. All of you know, without commutator DC machine play like the AC machine. Commutator play the very important role in the case of DC machine. Okay, and this one is the shaft. Okay, and also the parts of a stator. Brush, this one is the brush. Sixth one, brush, that is a part of a stator. Brush can't move. Okay, तो ये ब्रशेस भी हो गया हमारा. दिस वन, अब हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट वन, दैट इज द योक. दिस वन. ओके, हम लोग यहाँ पे पूरे कंस्ट्रक्शन को देख लिए हैं. मैं फिर से दिखा रहा हूँ. योक, आउटर पार्ट, दिस इज द बेस, दिस इज द फील्ड पोल. फील्ड के ऊपर ये बाइंडिंग किया हुआ है. ओके, दिस इज द इंटरपोल. ओके, फील्ड पोल के इस आगे जो है यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग है. ओके, जिसको डिटेल करेंगे. दिस इज द आर्मेचर स्लॉट एंड टीथ. दिस इज द आर्मेचर कोर. दिस इज द कम्यूटेटर सेगमेंट. दिस इज द शाफ्ट. दिस इज द ब्रशेस. और ये कनेक्शन निकला हुआ है प्लस माइनस. अगर आप इनपुट देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो यहाँ पे देंगे, और आउटपुट लेना हो तो यहाँ से लेंगे. ओके, नाउ हम लोग योग देखते हैं. जस्ट रब करते हैं. जैसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं योग. दिस वन इज द योग. सबसे पहले मतलब ये बाहरी पोर्शन जो है वो डैट इज द योग. डैट इज मेड अप ऑफ कास्ट स्टील और कास्ट आयरन. याद रखेंगे, ये कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बनता है. ओके, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, लाइक दैट. गॉट इट. ओके, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है. ओके, योक इज यूज्ड इन सिलेंड्रिकल शेप. योक का फंक्शन क्या है? सबसे पहले द फंक्शन ऑफ योक, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन योक परफॉर्म द टू फंक्शंस मेनली. ओके, फर्स्ट फंक्शन, योक एक्ट्स एज ए फ्रेम और प्रोटेक्टिंग. ओके, प्रोटेक्टिंग कवर. ये एक फ्रेम की तरह आउटर पोर्शन, योक इज द आउटर पोर्शन ऑफ द डीसी मशीन. ये एक फ्रेम की तरह प्रोटेक्टिंग कवर की तरह वर्क कर रहा है डीसी मशीन के लिए. डैट इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू होल डीसी मशीन. पूरे डीसी मशीन के कवर के रूप में काम करता है, इसके प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है. फर्स्ट थिंग्स. सेकेंड थिंग्स इज डैट योक कैरीज द
हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड वाइंडिंग। हाउ, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, ध्यान से देखेंगे। ये हमारा टोटल जो है फील्ड पोल है, इसको पोल कोर कहते हैं और इसको पोल स्लॉट कहते हैं। ओके, इसी के स्लॉट में जो है, सॉरी, इसी के पोल फेस कहते हैं। पोल फेस में स्लॉट बना हुआ है, स्लॉट में हम लोग कंडक्टर रखते हैं, इसी कंडक्टर को हम लोग कह रहे हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ओके, नाउ इस पोल कोर के ऊपर जो फील्ड वाइंडिंग दिया हुआ है, दिस वन नॉर्थ। ओके, नॉर्थ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकलना है ना, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा लाइक दैट। दिस वन। ओके, दिस वन, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। ओके, नाउ इसका आधा मैग्नेटिक फील्ड दिस वन, दिस वन, ये भी मैग्नेटिक फील्ड इन कर रहा है साउथ। नॉर्थ इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, साउथ इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड इन कर रहा है ना। तो ये दिस वन मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ है। तो यहाँ से इस फील्ड से, इस फील्ड पोल से अगर टोटल फ्लक्स फाई निकल रहा है तो 5/2 इधर चलाया, और 5/2 इधर चलाया, तो 5/2 इसमें गया, तो इसमें कौन सा फ्लक्स जा रहा है, कितना, 5/2। इसका भी आधा फ्लक्स इधर जा रहा है, तो कितना फ्लक्स आ रहा है, 5/2। इसमें आधा फ्लक्स किससे निकलेगा, इससे, है ना, इससे निकलेगा आधा फ्लक्स, दिस वन। दिस वन, इसको अगर हम लोग कंप्लीट कर दें, दिस वन साउथ में इन करेगा और नॉर्थ से निकलेगा, है ना, दिस वन। ये हो गया। तो ये सारा जो योग कैरी कर रहा है, ये योग कितना फ्लक्स को कैरी कर रहा है, एक्चुअली ये योग जो है हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी कर रहा है, दिस वन। तो पहला फंक्शन हुआ इसके कवर के रूप में, दूसरा फंक्शन हुआ इट कैरीज द हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड वाइंडिंग। गॉट इट। नाउ अब यहाँ जो योक है, ये जो योक है, ओके, दिस योक इज नॉट लेमिनेटेड। ओके, दिस योक इज नॉट लेमिनेटेड। एक्चुअली डीसी मशीन दो तरह का होगा, एक स्मॉल एक लार्जर मशीन। तो अगर स्मॉल डीसी मशीन हुआ देन योक इज नॉट लेमिनेटेड। लेमिनेशन हम लोग करते क्यों हैं? लेमिनेशन इज जस्ट यूज्ड टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, यानी कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लेमिनेट करते हैं। आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रांसफार्मर में अपने बात किया है कि ईडी करंट लॉस रिड्यूसेस विद द रिडक्शन इन थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन, है ना। तो लेमिनेशन हम लोग तब करते जब ईडी करंट लॉस आता है। ईडी करंट लॉस कब होगा? जब वहाँ पे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। बट इन द केस ऑफ अ स्मॉल डीसी मशीन, ये जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग ऑलवेज कैरी द डीसी, ओके, ऑलवेज कैरी। तो स्मॉल डीसी मशीन में हम लोग बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हम लोग बैटरी से कोई भी फील्ड वाइंडिंग हम लोग सप्लाई देंगे, है ना, ये दिस वन, तो अगर हम लोग फील्ड वाइंडिंग बैटरी के द्वारा सप्लाई देंगे तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा वो कैसा होगा? ओके, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, स्टेशनरी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्यों? सोर्स हमारा डीसी, स्टेशनरी, करंट उसके द्वारा जो फ्लो करेगा वो डीसी, है ना, दिस वन। ओके, तो इसके द्वारा जो फ्लक्स होगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेगा वो क्या है? वो फ्लक्स है।
ओके, तो उसके द्वारा फ्लक्स निकलेगा। अगर फ्लक्स हमारा डीसी है तो उसके द्वारा जो ईएमएफ इंड्यूस तो होगा नहीं, चूँकि ये स्टेशनरी है। तो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि अगर वहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है तभी उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, अदरवाइज जीरो। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस ही जीरो हुआ तो ईडी करंट तो ईएमएफ इंड्यूस मटेरियल में होने के कारण होता है, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा तो ईडी करंट नहीं होगा। देन हम लोग कह सकते हैं इन द केस ऑफ अ स्मॉल डीसी मशीन, ओके, योक इज नॉट लेमिनेटेड बिकॉज ऑफ the constant magnetic flux, because of the stationary magnetic flux produced by the field winding. Got it? Now in the case of large DC machine, large DC machine में क्या है भाई, large DC machine में जो हम लोग सप्लाई देते हैं, ओके, वो हम लोग फील्ड वाइंडिंग में थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देते हैं। फील्ड वाइंडिंग ऑलवेज कैरी द डीसी, ऑलवेज, ओके, बट इन द केस ऑफ लार्ज डीसी मशीन योक को हम लोग लेमिनेट करते हैं। क्यों लेमिनेट करते हैं? बिकॉज उसमें जो डीसी एक्साइटेशन आ रहा है फील्ड वाइंडिंग में वो थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रहा है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आने का कारण मतलब क्या है कि वो एसी को यहाँ पे हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट कर दिए। गॉट इट? तो जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो वो एसी को डीसी बदलता है। एंड ऑल ऑफ यू नो एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन कन्वर्ट द एसी इनटू फिक्स्ड डीसी, प्योर डीसी। प्योर डीसी मिलता नहीं है। जब प्योर डीसी नहीं मिला तो कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा, एसी पार्ट होगा। ओके, जब एसी पार्ट होगा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइक दैट, आई इक्वल टू आई नॉट आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये एसी पार्ट इसमें आ गया। क्यों? क्योंकि एसी से डीसी हम लोग बदल जब रहे हैं, ओके, थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो एसी प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ रिपल, ऑल ऑफ यू नो, है ना, एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन डीसी। तो उस एसी के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके चलते ईडी करंट लॉस होगा। तो उसी को ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, योक को लेमिनेट कर देते हैं, सो डैट कि ईडी करंट लॉस हमारा कम से कम हो। तो याद रखेंगे, योक इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। आई थिंक नो प्रॉब्लम विद द योक। ओके, तो हम लोग योक के बारे में बात कर लिए। ओके, अभी हम लोग स्टेटर के बारे में ही बात कर रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ फील्ड पोल। ओके, फील्ड पोल। नाउ फील्ड पोल, फील्ड पोल एक्चुअली दिस द योक एंड इसी योक से अटैच है फील्ड पोल, दिस वन फील्ड पोल। ओके, फील्ड पोल, the mechanical support of the field pole is provided by the yoke of the DC machine. Got it? Field pole consists of two parts. First one, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये है पोल कोर, पोल कोर, फर्स्ट वन। ओके, एंड सेकेंड वन, यहाँ से यहाँ तक जो है दिस वन, ये पार्ट। ओके, दिस वन इज कॉल्ड पोल शू, शू मतलब नीचे का पार्ट, और फेस यानी कि फ्रंट। ओके, एयर गैप का फ्रंट है ये, पोल फेसेस। देन फील्ड पोल कंसिस्ट ऑफ पोल कोर एंड पोल शूज और पोल फेसेस। ओके, नाउ आपको दिख रहा है पोल कोर, पोल कोर ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू। कट कर दो, ये पूरा मशीन है यहाँ तक उभरा हुआ, है ना। तो इसे कट करके हम लोग दिखा रहे हैं आपको मशीन का पार्ट। तो ये जो एक्चुअली है ये सिलिंड्रिकल नेचर का है। ये पोल कोर जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दिस वन, ओके, वो सिलिंड्रिकल शेप का है। ओके, यूजुअली ऑफ सिलिंड्रिकल नहीं बोलो, सर्कुलर बोलो, सिलिंड्रिकल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका, सिलिंड्रिकल है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कास्ट स्टील और कास्ट आयरन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ मशीन, कि लार्ज मशीन है या छोटा मशीन है। ओके, तो ये कास्ट स्टील और कास्ट आयरन का बना हुआ है। नाउ पोल कोर, पोल कोर पे जो है हम लोग जो बाइंडिंग कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड फील्ड बाइंडिंग, है ना। यानी कि हम लोग इस पर एक पोल वाइंडिंग हम लोग बाउंड किए हुए हैं, फील्ड वाइंडिंग। ओके, सो डैट इट कैरीज द मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, नाम ही है फील्ड पोल, वैसा पोल जो मेन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे, है ना। देन इट कैरीज द मेन मैग्नेटिक फ्लक्स
एंड प्ले द रोल ऑफ मैग्नेटिक पोल। यानी कि अगर हम लोग फील्ड पोल का बात करें डीसी मशीन में, देन दैट इज एक्चुअली द फील्ड पोल, यही है हमारा मेन मैग्नेटिक पोल। तो ये हमारा कितना पोल है, 1 2 3 4, यानी कि ये जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है इट इज़ अ 4 पोल डीसी मशीन। क्लियर है ना। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओके तो जनरली पोल कोर जो होता है दैट इज़ नॉट लेमिनेटेड। ओके ये पोल कोर जो है इसको हम लोग लेमिनेट नहीं करते हैं। पोल कोर इज नॉट लेमिनेटेड ड्यू टू द स्टेशनरी, ओके स्टेशनरी फ्लक्स और कांस्टेंट फ्लक्स, है ना, ये स्टेशनरी फ्लक्स पास कर रहा है इसमें। बट नाउअडेज पोल कोर्स आर मेड फ्रॉम द थिन लेमिनेशन ऑफ सीट, स्टील सीट। ओके स्टील सीट का थिन लेमिनेशन का बना हुआ है। ओके दैट इज द पोल कोर्स आर लेमिनेटेड to reduce the ED current losses because of using power semiconductor devices। मैंने कहा था आपको कि आज के डेट में जो है DC जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, बाय यूजिंग द डायोड। ओके इन दैट केस जो है बाय यूजिंग द थायरिस्टर, इन दैट केस वहाँ पे AC कंपोनेंट आना ही आना है। जब AC कंपोनेंट आएगा तो ED करंट लॉस होना ही होना है। तो उसी ED करंट लॉस को हम लोग रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसको लेमिनेट करते हैं। तो चूँकि ये हमारा जो है मेन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें अगर AC कंपोनेंट होगा तो उसके चलते हम लोग को मैग्नेटिक मटेरियल को लेमिनेट करना होगा जस्ट टू रिड्यूस द ED करंट लॉस, है ना। नाउ अब ये पोल शू, दिस वन, ओके दिस वन इज द पोल शू, यहाँ तक। ओके तो पोल शू क्या है, पोल शू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखो ये इतना, इसका क्रॉस सेक्शन इतना, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पोल कोर के क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या है, ज़्यादा है ना। तो याद रखेंगे पोल शू इज ऑफ लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पोल कोर। पोल शू जो है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। ओके पोल शू एक्ट्स एज ए सपोर्ट फॉर द फील्ड वाइंडिंग। ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसके लिए सपोर्ट का काम भी करता है। सपोर्ट कैसा, जैसे मशीन रन करेगा, मशीन रन करे तो मशीन में वाइब्रेशंस होगा, तो ये फील्ड वाइंडिंग एस्केप आउट ना हो जाए, बाहर ना हो जाएगा। ये दोनों पोल शू का पोल कोर का दोनों का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहा तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस फील्ड वाइंडिंग जो है वाइब्रेशन का लूज होने का वो निकल सकता है। तो यही कारण है कि हमारा जो पोल शू है दैट एक्ट्स एज ए सपोर्ट फॉर द फील्ड वाइंडिंग, है ना, फील्ड वाइंडिंग के लिए सपोर्ट का काम करता है। ओके सो दैट कि ये एस्केप आउट ना हो जाए पोल कोर से। क्लियर। नाउ अब ये पोल शू करता क्या है, पोल शू स्प्रेड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। आपको दिख रहा है इसमें जो है यूनिफॉर्मली ये क्या करेगा, एयर गैप में मैग्नेटिक फ्लक्स को स्प्रेड आउट करता है ना, यूनिफॉर्मली पोल शू। ओके सो दैट फ्लक्स पास थ्रू द आर्मेचर पेरिफेरी यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म रेट से आर्मेचर पेरिफेरी से पास करे, क्योंकि यही आर्मेचर पेरिफेरी जो रोटर का पार्ट है, आगे हम लोग बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, यही आर्मेचर वाइंडिंग है, आपको याद होगा। ओके आर्मेचर वाइंडिंग इज दैट वाइंडिंग इन विच एन EMF इज इंड्यूस्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड वाइंडिंग। गॉट इट। तो फील्ड वाइंडिंग के द्वारा जो आपका EMF इंड्यूस हो रहा है, ओके किस में, आर्मेचर वाइंडिंग में। ओके दे प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे बिकॉज ऑफ देख रहे हैं कि पोल शू का जो है लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, देन बिकॉज ऑफ लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑल ऑफ यू नो रिलक्टेंस इक्वल टू L/μA। तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना कम रिलक्टेंस होगा, और जितना कम रिलक्टेंस होगा mmf/रिलक्टेंस, ओके उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ओके और हम लोग चाहेंगे जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ही ज़्यादा EMF इंड्यूस्ड होगा, नहीं d∅dt। तो EMF इंड्यूस आर्मेचर वाइंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा होने के लिए फ्लक्स ज़्यादा होना चाहिए, फ्लक्स ज़्यादा होने के लिए रिलक्टेंस कम होना चाहिए, रिलक्टेंस को कम होने के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर।
तो ये कारण है कि पोल शू का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है पोल कोर से क्या है, ज़्यादा है ना। अब पोल शू जो होता है या पोल फेस जो होता है दैट इज ऑलवेज लेमिनेटेड, दे आर ऑलवेज लेमिनेटेड जस्ट टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए वो ऑलवेज लेमिनेट किया जाता है ना। क्यों? और साथ साथ हीटिंग इफेक्ट भी है ना, हीटिंग इफेक्ट क्योंकि कंडक्टर है तो वहाँ पे कंडक्टर है तो हीटिंग इफेक्ट आएगा वहाँ पे है ना, रेसिस्टेंस प्रेजेंट्स है। ओके, तो यहाँ पे ईडी करंट लॉस क्यों होगा? तो जो आर्मेचर वाइंडिंग है, तो आर्मेचर वाइंडिंग है तो इसमें जैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा। मैंने बताया था आर्मेचर वाइंडिंग इसके पहले के वीडियो में। ओके, तो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा तो उस करंट के हम लोग जानते हैं कि व्हेनेवर देयर इज करंट कैरिंग कंडक्टर देन देयर मस्ट बी मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसके चलते मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा दिस वन। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स किससे पास हो रहा है? ये देखो ध्यान से, ये मैग्नेटिक फ्लक्स पोल फेसेस के पास हो रहा है। किसके कारण? जो आर्मेचर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उस करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, ओके, वो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, दिस वन। सपोज ये एक कंडक्टर है, ये इसका पार्ट है, एक बना रहा हूँ मैं, ओके, दिस वन। तो इसके चलते मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा ना। तो देखो ये कहाँ से पास कर रहा है? ये पास कर रहा है पोल शू से या पोल फेसेस से, है ना। तो ईएमएफ इंड्यूस आर्मेचर वाइंडिंग ऑलवेज कैरी द अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो उसके द्वारा जो फ्लक्स होगा वो अल्टरनेटिंग होगा, तो वहाँ पे तो फ्लक्स अल्टरनेटिंग, तो वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल में ईडी करंट लॉस होगा। सो इट इज़ ऑलवेज लिमिनेटेड, गॉट इट। तो याद रखना है पोल शू इज ऑलवेज लिमिनेटेड, डजेंट मैटर कि वो स्मॉल डीसी मशीन है या लार्ज डीसी मशीन है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग मैंने जैसा बोला, द वाइंडिंग विच इज वाउंड सर्कुलरली, है ना, सर्कुलरली अराउंड द पोल कोर। पोल कोर के चारों ओर देखो ये रेड से जो दिखाया हुआ है दैट इज अ फील्ड वाइंडिंग, है ना। ओके, तो फील्ड वाइंडिंग हम लोग स्टेटर का जो फील्ड पोल है, फील्ड पोल का जो पोल कोर है, पोल कोर के चारों तरफ जो वाइंडिंग है सर्कुलरली बंधा हुआ दैट इज द फील्ड वाइंडिंग। तो ये जनरली फील्ड वाइंडिंग जो है या कॉपर वायर होता है या कॉपर स्ट्रिप होता है। तो जैसे ही करंट पास होगा फील्ड वाइंडिंग में, ओके, देन दिस फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूसेस द नेसेसरी फ्लक्स दैट इज कॉल्ड मेन वर्किंग फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स और यूजफुल फ्लक्स, गॉट इट। ओके, ये फील्ड पोल को क्या करेगा? मैग्नेटाइज करेगा। मैग्नेटाइज करने के बाद जो है मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। तो फील्ड वाइंडिंग या फील्ड कॉइल का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फील्ड वाइंडिंग और फील्ड फ्लक्स दैट इज टू प्रोवाइड द एमएमएफ, है ना। पहले एमएमएफ आएगा, दैट इज टू प्रोवाइड द एमएमएफ और नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। ऑफ कोर्स एमएमएफ मतलब एम्पियर टर्न्स होता है ना। तो एमएमएफ प्रोवाइड होगा, ये एम्पियर टर्न्स जस्ट रिक्वायर्ड टू गिव द प्रॉपर फ्लक्स, जो ये फ्लक्स का रिक्वायरमेंट है, ओके, जिससे कि हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो सके किसमें? आर्मेचर कोर में, है ना। तो आर्मेचर कोर में ईएमएफ इंड्यूस हो उसके लिए प्रॉपर फ्लक्स का रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर फ्लक्स के लिए नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग वाइंडिंग करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड करते हैं, गॉट इट। अब यहाँ पे देखो ये मेन मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ क्या है भाई? ओके, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ यानी कि द पाथ फॉलोड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय द पाथ ऑफ पोल कोर। पहले पोल कोर, पोल शू, एयर गैप पेरिफेरी, आर्मेचर कोर, यही है ना भाई। हाँ, आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर के बाद फिर आपका एयर गैप पेरिफेरी, पोल फेसेस, पोल कोर, फिर योक। ये आपका एक सर्कुलर पाथ है किसके द्वारा? आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, है ना। द पाथ फॉलोड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स, योक, पोल कोर, पोल फेसेस, एयर गैप पेरिफेरी, आर्मेचर कोर। फिर रिपीट हो रहा है ये, है ना। दिस इज द फील्ड वाइंडिंग। नाउ द ब्रशेस, ओके, हम लोग इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग को अलग से पढ़ेंगे इन डिटेल। ओके, क्या होता है, कैसे हम लोग इसको करते हैं। एक्चुअली हम लोग इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को आर्मेचर रिएक्शन पढ़ना होगा। ओके, तो आर्मेचर रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग पढ़ेंगे। नाउ सी द ब्रश, है ना। नाउ
now brushes, these one brushes, this one, ये अंदर से दिखाया हुआ है बट एक्चुअली ये ऊपर से कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर से, गॉट इट। ये सपोज कर लो आर्मेचर कोर है ये, ओके। ये जो आगे का छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये आगे का, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये आर्मेचर कोर कम्यूटेटर सेगमेंट, इसी पे ब्रश ऊपर से सप्रेस रहता है ना। तो जनरली ब्रशेस जो है वो ग्रेफाइट का बना होता है, इलेक्ट्रो ग्रेफाइट का बना होता है, या मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट का बना होता है, ओके, या आपका कॉपर ग्रेफाइट का बना होता है। जस्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई कंडक्टिविटी बिकॉज उसके थ्रू करंट हम लोग कलेक्ट करते हैं, हाई कंडक्टिविटी एंड लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन in the brushes of DC machine. Of course brush is the static part. ये किस पे है दबा हुआ? कम्यूटेटर सेगमेंट पे। कम्यूटेटर सेगमेंट से ही आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड है, आपने आर्मेचर वाइंडिंग में पढ़ा है ना। ये फिगर इस तरह का नहीं, इसी से आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड है, दिस वन, इसी पे ब्रश सप्रेस किया हुआ, यही ब्रश है, दिस वन, ओके। तो ब्रश जो जिस मटेरियल का हम लोग बना रहे हैं, कार्बन ग्रेफाइट का, कॉपर ग्रेफाइट का, जस्ट टू ऑब्टेन द हाई कंडक्टिविटी, क्योंकि इसी के थ्रू करंट कलेक्ट करना। मेन फंक्शन ऑफ द ब्रशेस इज टू कलेक्ट द करंट, ओके, एंड लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चूँकि ये कम्यूटेटर सेगमेंट हमारा ये रोटेटिंग पार्ट है, ब्रश स्टैटिंग पार्ट है, तो फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए, नहीं नो। अब जो ब्रशेस है, ब्रशेस कैन बी मेड ऑफ कॉपर इन द केस ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ओके, ऑटोमोबाइल डीसी मशीन, ओके। यानी कि जब लो वोल्टेज और हाई करंट का यूटिलाइज करना हो, इन दैट केस ब्रशेस जो है कॉपर ग्रेफाइट या कॉपर का बना हुआ होता है, ओके। तो ब्रशेस जो होते हैं किस तरह से होते हैं, वो बॉक्स टाइप में प्लेस किया रहता है, ओके। ये योक है हमारा, है ना, ये योक है, तो योक से ही अटैच्ड है ब्रशेस, ये योक है, योक से एक ब्रश होल्डर के द्वारा जो है, ओके, यहाँ से स्प्रिंग है, ओके, और ये यहाँ पे मेटल बॉक्स इस तरह से बना हुआ है, और यही ब्रश है हमारा, दिस स्प्रिंग के द्वारा प्रेशर मेंटेन रहता है कम्यूटेटर सेगमेंट पे। ये कम्यूटेटर सेगमेंट, ओके, जो रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, दिस वन। तो इसी तरह से ब्रशेस होते हैं, है ना। यानी कि ब्रशेस आर हाउस्ड इन द बॉक्स टाइप ब्रश होल्डर्स विच इज अटैच्ड टू द स्टेटर योक से अटैच्ड है, ओके, बाय द स्मॉल स्प्रिंग इसलिए सो डैट कि वो हमेशा प्रेशर बनाए रखे कम्यूटेटर सेगमेंट पे, है ना, कम्यूटेटर सरफेस पे ब्रश के द्वारा हमेशा प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, स्प्रिंग लगाना होगा। अदरवाइज स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो एक बार रोटेट कर तो उससे फोर्स लगेगा और ब्रश जो है फिर वहाँ से हट जाएगा, ब्रश हट जाएगा तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा, है ना। तो द ब्रश के द्वारा जो है प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ओके, ऑन द कम्यूटेटर, उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं बाय यूजिंग द स्प्रिंग, है ना। इस स्प्रिंग के द्वारा हम लोग एडजस्ट करते हैं और एक कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? अगर सोचो इस कम्यूटेटर सरफेस पे बहुत कम प्रेशर होगा, यानी कि टू स्मॉल ब्रश प्रेशर होगा, तो उसके चलते कभी कभी छूटेगा, कभी मतलब ब्रश और कम्यूटेटर सरफेस का कांटेक्ट जो है वो कभी छूटेगा कभी लगेगा, है ना। अगर प्रेशर कम रहा तो उसके चलते आर्किंग होगा, है ना। आर्किंग जैसे यहाँ पे हल्का सा छूटा तो यहाँ पे क्या हो गया, एयर गैप हो गया, तभी करंट फ्लो कर रहा था, सडनली करंट फ्लो करना बंद, फिर करंट फ्लो करना शुरू, तो उसके चलते आर्किंग होता है। आर्क क्या है? दैट इज जस्ट ओनली द कॉलम ऑफ आयंस, है ना। आयंस पढ़ेंगे आप सर्किट ब्रेकर में भी, डोंट वरी, आर्क, ओके। तो वहाँ पे आर्किंग होगा, आर्किंग बनेगा, ओके। आर्किंग बिटवीन द ब्रश
एंड कम्यूटेटर सेगमेंट पढ़ाएंगे, कम्यूटेटर में भी, दोनों कम्यूटेशन में, है ना। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, ओके, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे ब्रश प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो उसके चलते बहुत ज़्यादा वियर एंड टीयर होगा, वियर एंड टीयर मतलब टूटना फूटना शुरू हो जाएगा। गॉट इट। तो इसलिए हम लोग जो है प्रॉपर ब्रश प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग स्प्रिंग का यूटिलाइज करते हैं, सो डैट कि एक प्रॉपर वैल्यू पे एडजस्ट करें, कांस्टेंट वैल्यू पे, और कांस्टेंट प्रेशर के साथ वो वर्क कर सके, है ना। नाउ तो हम लोग ने बात क्या किया कि द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रशेस इज टू कलेक्ट द करंट फ्रॉम द आर्मेचर वाइंडिंग। ये आर्मेचर वाइंडिंग से करंट फ्लो करेगा, आर्मेचर वाइंडिंग से करंट को कलेक्ट करने के लिए ब्रश का मेनली यूटिलाइज किया जाता है थ्रू द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के थ्रू आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा, ब्रश से कलेक्ट करेंगे, है ना। नाउ ब्रशेस आर एट रेस्ट ऑन द कम्यूटेटर सेगमेंट, याद रखेंगे, है ना। अब ब्रशेस में जो है, क्योंकि ब्रश के थ्रू हम लोग करंट को कलेक्ट करते हैं, तो जहाँ करंट है वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा, ओके, करंट फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, साथ साथ लॉसेस होगा, है ना। बट लॉसेस इज़ वेरी लेस, वोल्टेज ड्रॉप वेरी लेस, ओके। यूजुअली जो वोल्टेज ड्रॉप देखा गया है इन द ब्रशेस 0.8 वोल्ट टू 1 वोल्ट, है ना, 0.8 वोल्ट टू 1 वोल्ट फॉर कार्बन ब्रशेस, ओके। वाइल द पावर लॉस इज ऑब्टेन्ड बाय द वोल्टेज ड्रॉप, अगर हम लोग पावर लॉस के ही निकालेंगे, ओके, देन VB इंटू आई, VB is the brush voltage drop and I is the total current passing through the brushes, ओके। तो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप जनरली 0.8 वोल्ट से 1 वोल्ट लेंगे कार्बन के लिए हम लोग, है ना, और जो उसके थ्रू टोटल करंट फ्लो करेगा, टोटल करंट हैंडल बाय द ब्रश इज आई, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, पावर लॉसेस, ओके। नो, तो ये कहानी था ब्रशेस का। अब हम लोग शॉर्ट में बात करते हैं कि जहाँ पे भी हाई वोल्टेज और लो करंट का यूटिलाइज करना हो, लो करंट मीडियम करंट डीसी मशीन हो, तब हम लोग वहाँ पे ऑलवेज कार्बन ब्रश प्रीफर करेंगे, है ना। क्या, हाई वोल्टेज, लो करंट, हाई वोल्टेज, मीडियम करंट, तो हम लोग कार्बन ब्रश का हम लोग यूटिलाइज करेंगे, प्रीफर करेंगे। इलेक्ट्रोग्रेफाइट ब्रश जो होगा, ओके, दैट इज यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ डीसी मशीन, इलेक्ट्रोग्रेफाइट। वही अगर कॉपर ग्रेफाइट हम लोग यूज़ करें, कॉपर ग्रेफाइट ब्रशेस आर यूज्ड इन द केस ऑफ लो वोल्टेज एंड हैवी करंट डीसी मशीन, गॉट इट। तो ये हमारा जो है, ऐसा हम लोग ये सारा क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं, कार्बन, इलेक्ट्रोग्रेफाइट या कॉपर ग्रेफाइट, बिकॉज दे आर सेल्फ लिब्रिकेटिंग। नाउ एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि यूजुअली कार्बन ब्रशेस आर टू बी प्रीफर्ड इन द केस ऑफ डीसी मशीन, ओके, क्यों, एक प्रॉपर रीज़न देना है कि कार्बन ब्रशेस को ही हम लोग क्यों यूटिलाइज करते हैं डीसी मशीन के केस में, है ना। तो उसका सर्टेन रीज़न है। सर्टेन रीज़न क्या है कि कार्बन जो होता है, दे हैव द लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट थिंग्स, लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होगा तो उसके चलते क्या होगा, लो फ्रिक्शन होगा, दूसरा थिंग, है ना। तो लो फ्रिक्शन होगा तो यानी कि वो टीयर और बियर को मेंटेन करेगा, इट मेंटेन द टीयर एंड बियर प्रॉब्लम ऑन इन द केस ऑफ डीसी मशीन, ओके। चूँकि कार्बन है तो कार्बन हैव द हाई कंडक्टिविटी, जब हाई कंडक्टिविटी होगा यानी कि जो है हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू इनपुट और आउटपुट ईजिली ले सकते हैं, है ना, ईजिली, ओके। एक कारण है कि हम लोग कार्बन ब्रश को जनरली प्रीफर्ड करते हैं। तो ये था ब्रशेस का कहानी। तो हम लोग क्या कर लिए भाई, स्टेटर का सारा पार्ट पढ़ लिए एक्सेप्ट इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ये हमारा इंटरपोल और ये कंपनसेटिंग, दिस वन। अब हम लोग पढ़ेंगे रोटर के बारे में, रोटर के आर्मेचर कोर के बारे में, जैसे आर्मेचर कोर, है ना। नेक्स्ट वन इज द रोटर, रोटर रोटेटिंग मेंबर यानी कि आर्मेचर कोर, ओके। मैं आपको मोबाइल में दिखाने का कोशिश करता हूँ, ओके। दिस वन दिख रहा है आपको, आई थिंक, ये देखो, ये आपको आर्मेचर कोर, ओके। ये आपका जो सिंगल बना हुआ है, ये सिंगल वन, ओके, दिस वन,
ये सिंगल, ये बना हुआ है, ये देखो इसी को सबको एक साथ जोड़े हुए हैं तब ये बन रहा है ऐसा। दिस इज द आर्मेचर कोर, बहुत सारे को हम लोग जोड़े हुए हैं, है ना। ओके, अब ये जो है हमारा, ये देखो ये आर्मेचर स्लॉट, दिस वन स्लॉट टिथ, स्लॉट टिथ, स्लॉट टिथ, स्लॉट टिथ, इसी स्लॉट में जो ब्लू ब्लू डॉट बनाया हुआ है दैट इज़ द कंडक्टर। ये देखो, ओके, ये ही आपका आर्मेचर वाइंडिंग स्लॉट में रखा हुआ, ये स्लॉट टिथ दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये आपका कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये शाफ्ट है ना। और ये आर्मेचर वाइंडिंग जो है कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको आई थिंक, है ना। तो ये इसी का क्रॉस सेक्शनल व्यू है आपका, किसमें, यहाँ पे। ओके, तब यहाँ पे आर्मेचर कोर हम लोग, मैंने दिखा दिया आपको, ये कनेक्टेड है। ओके, ये कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड है। इसी पे ब्रश जो है फोकस किया रहता है ना, ब्रश फोकस किया रहता है। उसका भी अगर फिगर देखना चाहेंगे आप लोग तो मैं दिखा सकता हूँ। दिस वन, ये होल फिगर है। ओके, ये तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कहीं पे भी गूगल में भी आप देख सकते हैं, डोंट वरी। ओके, नाउ तो आर्मेचर कोर क्या हो गया, आर्मेचर कोर दैट इज़ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द डीसी मशीन, और ये जनरली सिलेंड्रिकल और ड्रम शेप का रहता है। आपको याद होगा आर्मेचर वाइंडिंग में ड्रम वाइंडिंग है ना, इसलिए ये ड्रम शेप का होता है। तो आर्मेचर के अंदर ये जो आपका शाफ्ट है, शाफ्ट भी मैंने दिखाया था अभी आपको फिगर में, शाफ्ट है जिस पे जो है लेमिनेटेड सिलेंडर एक माउंटेड होता है, लेमिनेटेड सिलेंडर दैट इज द आर्मेचर कोर। क्लियर, आर्मेचर कोर हैव द स्लॉट्स एंड द टिथ, ये जो उभरा हुआ पार्ट है दैट इज टिथ, दिस इज अ स्लॉट, है ना। और उसी स्लॉट में जो है हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर कंडक्टर को प्लेस करते हैं। ओके, आर्मेचर हैव द लेमिनेटेड आर्मेचर कोर। ओके, जो जनरली हाई परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, जनरली सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग का होता है। ओके, ऑफकोर्स लेमिनेशन करने का पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ यूजिंग लेमिनेशन इज टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस इन द आर्मेचर कोर। ओके, आर्मेचर कोर जो जनरली लेमिनेशन जो होता है, ओके, याद रखेंगे 0.35 mm से टू 0.50 mm होता है, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछता है ना, सिलिकॉन स्टील का जो थिक लेमिनेशन होता है ये इतना ही थिकनेस होता है उसका। ओके, इसमें जो हम लोग आर्मेचर कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं दे आर लेमिनेटेड। ओके, वो भी लेमिनेटेड होता है, वो आर्मेचर कोर के स्लॉट में प्लेस किया हुआ है। ओके, और उसको क्या करते हैं हम लोग, फैशन करते हैं, फंसा देते हैं, सो डैट कि अगर आर्मेचर रोटेट करे तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर्मेचर कंडक्टर या आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो निकल ना जाए। गॉट इट। तो आर्मेचर कंडक्टर को इस तरह से प्रॉपर्ली कनेक्ट करते हैं सो डैट इट फॉर्म द आर्मेचर वाइंडिंग। एंड ऑल ऑफ यू नो about the armature winding in detail. Armature winding is that winding in which an EMF is induced by passing through the magnetic flux produced by the field winding, जिसके बारे में हम लोग डिटेल कर लिए थे, है ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, आर्मेचर कोर आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग देख लिए, हम लोग देखेंगे कम्यूटेटर। ओके, कम्यूटेटर। नाउ दिस इज अ कम्यूटेटर सेगमेंट, ये आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है, अभी हम दिखाएंगे मोबाइल में उसका फिगर। कम्यूटेटर जो है वो भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है। ओके, जो वेज शेप्ड सेगमेंट होता है ना, वेज शेप का होता है, आगे राइजर लक्स के द्वारा कनेक्टेड होता है, जिसको मैं दिखाऊंगा। ओके, वेज शेप्ड सेगमेंट, जिसका वो सेगमेंट जो होता है दैट इज़ ऑफ हाई कंडक्टिविटी, और ये जो बना होता है हार्ड ड्राउन कॉपर का बना होता है, हार्ड ड्राउन कॉपर। क्यों, मतलब हार्ड ड्राउन कॉपर, कॉपर हार्ड होता है जस्ट टू रिड्यूस द बियर एंड टीयर, दिस वन। ओके, तो कम्यूटेटर इज मेड अप ऑफ हाई कंडक्टिविटी हार्ड ड्राउन कॉपर। ओके, जस्ट टू रिड्यूस द वियर एंड टीयर, क्योंकि इसी कम्यूटेटर पे ब्रश प्रेस्ड रहता है ना, और इसी से हमारा करंट जो है फ्लो करता है। नाउ कम्यूटेटर सेगमेंट जो होता है जनरली इंसुलेटेड होता है फ्रॉम द माइका। ये बीच बीच में जो आपको लाइन दिख रहा है इट इज एक्चुअली द माइका। ओके, ये माइका होता है जिसका थिकनेस जो होता है 0.5 mm से 1 mm होता है, ये आपको एग्जाम में पूछता है, सो जस्ट रिमेंबर इट। ओके, नाउ ईच कम्यूटेटर सेगमेंट
ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है मैंने आपको फिगर बना के दिखाया था, है ना। इस कम्यूटेटर सेगमेंट इज कनेक्टेड बाय द आर्मेचर वाइंडिंग, दिस वन इस कम्यूटेटर सेगमेंट, है ना। कम्यूटेटर सेगमेंट इज कनेक्टेड बाय द आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर कंडक्टर बाय मीन्स ऑफ कॉपर लक्स, स्ट्रिप और राइजर। ओके, उसी के द्वारा ये कनेक्टेड ही होता है। नाउ मैंने बताया था कम्यूटेटर दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डीसी मशीन। ओके, डीसी मशीन, और ये जो है बहुत सारे पर्पस हैं इसका कम्यूटेटर का यूज़ करने का, जिसमें डिफरेंट फंक्शन जो है कम्यूटेटर के, ये भी हम देखेंगे जस्ट सी। इस कम्यूटेटर का पहला फंक्शन क्या है? ओके, पहला वर्क क्या है? इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द आर्मेचर कॉइल एंड द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक सर्किट। ये स्टेशनरी इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि ब्रश के द्वारा जो कनेक्टेड है, ये कम्यूटेटर रोटेटिंग है ना। तो जो भी रोटेटिंग पार्ट है आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग और ब्रशेस स्टेशनरी और इलेक्ट्रिक सर्किट, उन दोनों को इलेक्ट्रिक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? कम्यूटेटर, पहला चीज़। ओके, जैसे दूसरा चीज़ है एज द आर्मेचर रोटेट्स इट परफॉर्म द स्विचिंग एक्शन। स्विचिंग एक्शन यानी कि ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को रिवर्स करता है बिटवीन द रोटेटिंग आर्मेचर कॉइल एंड एक्सटर्नल सर्किट, सो डैट रिवर्स करने का मतलब क्या है कि ये ईएमएफ इंड्यूस की बात हो रही है ना। ओके, इस तरह से रिवर्स करता है सो डैट कि आर्मेचर कंडक्टर में जो ये वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ओके, वो वोल्टेज क्या हो? एडअप हो जाए, है ना। एडअप हो जाए और जिसका रिजल्ट है डीसी आउटपुट वोल्टेज, ये सारा एडअप होते जाएगा तो हमारा ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट आएगा। तो ये दूसरा हुआ, है ना। अब तीसरा कम्यूटेटर जो है, कम्यूटेटर दैट प्ले द रोल ऑफ कन्वर्टर। डीसी मशीन में ये कन्वर्टर की तरह काम करता है। दैट मीन्स इट प्ले द रोल ऑफ इन्वर्टर AC to DC in the case of DC motor, sorry in the case of DC generator। DC जनरेटर में ये इन्वर्टर की तरह काम करता है। DC जनरेटर में ये क्या करता है? रेक्टिफायर, रेक्टिफायर हम लोग जानते हैं क्या होता है? AC to DC। तो DC जनरेटर यानी कि DC आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट चाहिए तो उस समय कम्यूटेटर जो है रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। वही डीसी मोटर के केस में ये इन्वर्टर की तरह काम करता है। इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में बदलता है। तो डीसी मोटर में आउटपुट क्या चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी, दिखाएंगे हम आगे। तो इनपुट हम लोग डीसी दिए, वो बदलेगा एसी, चूँकि आर्मेचर वाइंडिंग में करंट हमारा ऑलवेज क्या फ्लो करता है? एसी, जिसको हम दिखाएंगे, डोंट वरी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डीसी जनरेटर के केस में ये रेक्टिफायर रोल प्ले कर रहा है और डीसी मोटर के केस में ये इन्वर्टर रोल प्ले कर रहा है ना। नाउ नेक्स्ट फंक्शन जो कम्यूटेटर का है, इट कीप्स द आर्मेचर एमएमएफ स्टेशनरी इन अ स्पेस, यानी कि स्पेस में आर्मेचर एमएमएफ को स्टेशनरी रखता है। हाउ? इसको हम लोग आगे डिक्लेयर करेंगे। ओके, हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं एक क्षण के लिए कि सपोज देखो यहाँ पे ये आर्मेचर एमएमएफ को कैसे स्टेशनरी करता है कि ये हमारा जो है रोटर है, ये स्टेटर है, दिस वन। ओके, तो ये आर्मेचर कंडक्टर है सारा इसमें कनेक्टेड। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आर्मेचर एमएमएफ स्टेशनरी इन स्पेस, यानी कि आर्मेचर कंडक्टर के द्वारा जो एमएमएफ आ रहा है, तो कुछ भी हो जाए यहाँ पे हमेशा नॉर्थ और यहाँ पे ऑलवेज साउथ बनेगा। ओके, कैसे दिखाएंगे आगे, है ना। तो ये हुआ कम्यूटेटर का फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा शाफ्ट। ओके, शाफ्ट, जस्ट सी, ये जो हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट दैट इज द सॉलिड सिलेंड्रिकल रोटेटिंग पार्ट ऑफ द डीसी मशीन, जिस पे आर्मेचर कोर पूरा माउंटेड है। ओके, वो आर्मेचर कोर माउंटेड है थ्रू द कम्यूटेटर, है ना। जब हम लोग शाफ्ट के बेस्ट मटेरियल को कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे सेवरल कंसिडरेशन कंसीडर करना पड़ता है। दैट इज द कॉस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मटेरियल डिफिशियंसी, ये सारे को हम लोग कंसीडर करते हैं तब हम लोग शाफ्ट का सिलेक्शन करते हैं। जनरली मैन्युफैक्चर जो यूज़ करते हैं यहाँ पे शाफ्ट के रूप में कोल्ड रोल्ड स्टील यानी कि CRS, हॉट रोल्ड स्टील यानी कि HRS। ओके, जो गुड स्ट्रेंथ को शो करता है, टफनेस को शो करता है, वियर रेसिस्टेंस है, तो ये सारा हम लोग
शाफ्ट के रूप में यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह से पूरा डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ आपका। ओके, इसमें इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग रहा। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आर्मेचर रिएक्शन के बाद स्टडी करेंगे। आई थिंक आप इसको एंजॉय करेंगे, इसको समझेंगे। नहीं कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताएंगे, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।